Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well with me. Today we will be talking about a very fundamental, interesting and conceptual topic of biology, that is the DNA under the topic molecular basis of inheritance. So पहले हम ये देखेंगे ये molecular basis of inheritance का मतलब क्या है. Then we will go in detail about the DNA. So let's start. What is the molecular basis of inheritance? I hope you all heard about the word hereditary characters. Characters, they have ability to pass from one generation to the next generation. So characters जो अपनी एक parental generation से अपनी next progeny तक जाते हैं वो hereditary characters होते हैं. So information, characters and you can say features from their parent to their progeny, how they pass. Means what is the molecular basis, means which molecule present in our body that is responsible for this information transfer. So on the basis of the molecule, this is known as molecular basis of inheritance. Means which type of molecule are which type of molecule are responsible for these characters transformation from one generation to next generation. So we can say this is the molecular basis of inheritance. Means which type of molecule responsible for the inheritance. This is molecular basis of inheritance. Overall, organisms have two type of genetic material. So these two type of genetic materials are DNA and RNA. But the majority of organisms have DNA as their genetic material. So in this video lecture, we'll talk in detail about DNA. So let's start. What is DNA? Deoxyribonucleic acid or you can say polynucleotide. So पूरा deoxyribonucleic acid कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है. Then polynucleotide का मतलब क्या है, दोनों को हमें अच्छे से डिटेल में देखना है. poly means many and nucleotide means अभी हमें पूरा देखना है न्यूक्लियोटाइड क्या है. मीन्स बहुत सारे many nucleotides एक लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम बोलते हैं डीएनए, जो हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है. तो यहाँ पे हमें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब देखना है. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, देन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 component. So these 3 component of a nucleotides are nitrogen base, the second is pentose sugar and third is phosphoric acid. So let's start one by one in detail. So what about the phosphoric acid? This phosphoric acid means this present in the form of PO4 3- ion. So this molecule present in the form of phosphoric acid ion form. So this phosphoric acid ion form, due to this negative charge, it provide negative charge to DNA. So why DNA is negatively charged? Negative charge to DNA due to this phosphoric acid. So the name phosphoric, this deoxyribonucleic acid, so this acid name coming from this phosphoric acid. And due to this phosphoric acid, DNA is slightly acidic also. Acidic. So this phosphoric acid provide slightly acidic nature. बहुत सारे पिछले कंपटीशन एग्जाम्स जो नीट के हैं उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए कौन सा चार्ज होता है. डीएनए भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है. डीएनए किस टाइप का मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है. डीएनए कौन सा नेचर है डीएनए का, ये भी पूछा गया है. डीएनए स्लाइटली एसिडिक नेचर है. एसिडिक नेचर कहां से आता है, कौन सा कंपाउंड है डीएनए में, कौन सा कंपोनेंट है जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जो डीएनए को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है. जो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल है ये डीएनए को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है. तो आप इसमें बता सकते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है. डीएनए का एसिडिक एंड नेचर एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है. तो ये होगा फॉस्फोरिक एसिड के बारे में. देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज पेंटोज सुगर. If we talk about pentose sugar means 5 carbon sugar. So here pentose sugar means 5 carbon sugar.
There are two type of pentose sugar present in nucleotides for both DNA and RNA. So these pentose sugars are, one is beta D ribose and another is beta D2 deoxyribose. So beta D ribose means one is ribose sugar and other is deoxyribose sugar. What is the structure of ribose sugar, or you can say what is the difference between ribose and 2-deoxyribose? So remaining structure is same for ribose and deoxyribose. The only difference is at the second position. That's why this is 2-deoxyribose. So this is the structure of beta D ribose sugar. 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन 5 कार्बन है यहाँ पे, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है. द ओनली डिफरेंस इज एट दिस सेकंड पोजीशन. Here in the 2-deoxyribose, at the ribose sugar the second position have hydroxyl group, but here at the second position it do not have, or here hydroxyl group is absent. So that's why this is known as deoxy, means hydroxyl group is absent here. So only difference is at second position where hydroxyl group is absent in the deoxyribose sugar. This ribose sugar present in RNA and this deoxyribose sugar present in DNA. Clear? Then what about the third component? The third component of DNA is nitrogenous bases. Nitrogenous bases means there are two type of nitrogen bases present in both DNA and RNA, overall nucleotide. So these two type of nitrogen bases are purines and other is pyrimidines. So there are two purines. Two purines, they are common for both DNA and RNA. So these two purines are adenine and guanine. Adenine and guanine are the two purine. They are common in both DNA and RNA. The structure of purine is having two chain. The structure of purine having two chain like this. Two ring structure. The structure of pyrimidine is with single ring like this. This is a single ring structure like this. And if we talk about purines, then purines have this additional ring. So purines have this additional ring. This is purine structure. The only ring is pyrimidine structure. So adenine and guanine are two purine that are common for both DNA and RNA. Then the second nitrogen base is pyrimidine. Pyrimidine means the DNA contains thymine and cytosine, and the RNA contains uracil and cytosine. So here cytosine is common for both DNA and RNA, but the only difference is RNA contains uracil instead of thymine. In DNA, thymine is a pyrimidine base. In RNA, uracil is a pyrimidine base. So overall, 2 purines, adenine and guanine, and 3 pyrimidines. So pyrimidine is a, ये बहुत बड़ा नाम है. अगर इसको कट कर दो, इस टाइप से इसको याद रखने का ट्रिक है. पायरिमिडीन बड़ा नाम है, इसको कट कर दो तो क्या होगा? कट का मतलब क्या है यहाँ पे? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, CUT. कट कर दो. पायरिमिडीन एक बड़ा वाला नाम है, इसको कट कर दो. साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिडीन. सो ये बनता है साइटोसिन. कट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म, इससे आप इसको याद रख सकते हो. तो ये 3 हो गए पायरिमिडीन और एक ये प्यूरिन्स 2 हो गए एडेनिन एंड गुआनिन. ये हमेशा 2 प्यूरिन होते हैं. तो ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए में. सो ये तो हुई एक न्यूक्लियोटाइड की बात. अभी तक हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड की, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड PO4 की फॉर्म में होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, नेगेटिवली चार्ज होता है एंड ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है डीएनए को. अगर हम बात करें ये फॉस्फोरिक एसिड को यहां से हम हटा दें, इस फॉस्फोरिक एसिड को हटा दें, तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड. ये न्यूक्लियोसाइड बचता है. फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दो तो बचता है न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. न्यूक्लियोसाइड मींस कौन कौन से कंपोनेंट हो गए न्यूक्लियोसाइड में? 2 कंपोनेंट हो गए, नाइट्रोजन बेसेस एंड पेंटोज सुगर. अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दें, ये जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दें, तो ये कंप्लीट हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजन बेस प्लस
पेंटोस सुगर, इतना पार्ट जो बनता है वो न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो रहा है तो न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, तीनों कंपोनेंट, इसमें फॉस्फोरिक एसिड को साइड करने पे न्यूक्लियोसाइड रिमेनिंग पार्ट बचता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हो गए, और एक न्यूक्लियोटाइड, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये 3 कंपोनेंट होते हैं, तीनों कंपोनेंट को हम डिटेल में देख चुके हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो गई, अब एक न्यूक्लियोटाइड के तीनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट कैसे कंबाइन होकर एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहां से लेके ये इतनी जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एक प्यूरिन रिंग है, ये डबल रिंग है इसलिए प्यूरिन रिंग है, एक प्यूरिन रिंग, एक पेंटोस सुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, प्यूरिन मींस एक नाइट्रोजन बेस है, तो ये नाइट्रोजन बेस वाला कंपोनेंट है इधर, ये पेंटोस सुगर 5 कार्बन सुगर है, और ये इधर फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये कौन कौन से बॉन्ड के थ्रू कैसे अटैच होकर एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे जो पेंटोस सुगर है उसका जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है, ये जो अपना नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन का, उसके साथ कौन सा, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंक के थ्रू बॉन्ड है, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये जो पेंटोस सुगर का फर्स्ट कार्बन है वो इसके साथ अटैच कर रहा है इसको। तो अभी इतना बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना तो क्या चाहिए न्यूक्लियोसाइड के लिए, 5 कार्बन पेंटोस सुगर प्लस ए नाइट्रोजन बेस दैट इज प्यूरिन है। सो बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो रहा है, कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई एक न्यूक्लियोटाइड की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज ऑल अबाउट ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। नाउ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक विथ ईच अदर and form a polynucleotide chain. So here this is the polynucleotide chain structure. Polynucleotide means many nucleotides link with each other and form a polynucleotide chain or a DNA structure. So this is a 5 carbon pentose sugar, this is nitrogen base, and this group is phosphoric acid. This is a single nucleotide. Then at the third position of hydroxyl group of pentose sugar link with the help of phosphoric acid coming from the upcoming nucleotide। ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो फॉस्फोरिक एसिड है वो पहले वाले के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। सो ये जो लास्ट यहाँ पे हमारा बचता है, स्टार्टिंग जहां से होती है इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम। जो 5 प्राइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो हमेशा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है उस पे। लास्ट एंड जो बचता है वो होता है 3 प्राइम। 3 प्राइम पे हमेशा क्या रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा रिमेनिंग रहता है। तो यहाँ 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है, फिर दूसरा एक अटैच हो रहा है सेम न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा सेम न्यूक्लियोटाइड अटैच होकर के फॉस्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के थ्रू एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बना रहे हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो है, the polynucleotide attached to a 5 prime phosphate group and 3 prime has फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लास्ट जो एंड होता है उसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। सो ओवरऑल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 एंड होते हैं, जहां से स्टार्ट होता है 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे हमेशा फॉस्फेट होता है, जहां पे एंड होता है वो होता है 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। 5 प्राइम फॉस्फेट, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसाइज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, बेसिक स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। Then how this is a single polynucleotide chain, but we all know DNA is made up of 2 polynucleotide chain. So 2 polynucleotide chain कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है डीएनए की, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बाय फॉर टुडे।